Very good morning to all of you. Welcome to the Medico Legal Conclave of Akriti. Akriti is a group of 18 friends who wants to do something different, not only sitting in a kitty and eating and chatting. In that way, the Akriti has come in front of you with the breast saga 6 months back, and today here we are with the Medico Legal Conclave, which is today is the burning topic for all of us. We are wearing a sari which is not white. Why? Because the white color of a doctor is become red with the blood of red and become little bit dirty with the why? Who is at fault? Whether we or the society? I think somewhere us, because we don't go to the society and tell our part. Because of that, today's the Medical Legal Conclave is bridging the gap with the society, with the lawmaker, with the policy makers. And my request to each of you, very much in time, very crisp message to everyone. And the extra talking is a main culprit. What you talk unnecessary in front of the patient, what your staff talk, and this sometime take you to the court. So learn here first thing to give the crisp message, precise message, follow the protocols, follow the SOP, and document everything. Good morning, everyone. I'm really glad to see that a branch of medicine, especially obstetrics and gynae, is taking up this matter so seriously. Because when I took as a president of Medical Council 8 years back, it was my main worry. The number of cases which are coming against doctor were not because of lack of medical knowledge or lack of your part of treatment, but probably lack of knowledge of law. So many places we see that either though you are very competent, done everything medically right, but you lack other things which are mandated by law. So it's our endeavor, it's my campaign to educate every doctor in Delhi about the law. So I have launched 2 programs. One is in association with Delhi Medical Association, where we go at every branches and teach them about medical law. And secondly, we are starting with various specialties as well, where we conduct 2-hour symposium with that specialty, and Delhi Medical Council is sponsoring lunch and everything, so you can go ahead and make more such programs. And thirdly, what we have done, we have made it mandatory from Delhi Medical Council. Every academic activity has to have a half-an-hour session on medical laws, otherwise we will not get credit hours. जबरदस्ती है पर कर रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी है. And so about the topic, I was sitting here for half an hour. 2 or 3 things came to my mind. One thing is there's a lot of confusion in law. But the good thing is, though we get always news of the bad cases against doctors, कि ये हो गया, doctor को टांग दिया 1 crore, but most of the judges are very good. They are very sensible people. What I have seen, 95% cases, these judges give always verdict in favor of doctors. And law is just about common sense. आपने तो कितना confusion है, consent में confusion है, हर जगह confusion है. After the end of the session, probably you end up with more confusion than any clarity. Yes, होता है ना कि अभी आए थे तो बहुत clear था, पूरा confuse होके जा रहे हैं यहाँ से, क्या हो गया. तो ये भी एक बड़ा चक्कर है, पर मैंने देखा है कि law is common sense. अगर मैडम के कोर्ट में खड़े हैं और आप अपने आप को explain कर सकें, in what situation, what you did in what circumstances, everybody is a human being. And everything cannot be written on black and white. Under the circumstances, whatever you did, you should be able to explain it logically. ये आपका लॉ है सीधा सीधा सा. अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन है. कंसेंट में टोटल कंट्राडिक्शंस है. एक जगह लॉ कहता है कि इफ यू टच ए बॉडी विदाउट अ कंसेंट इज ए बैटरी, और अदर हेड आप कहते हैं इमरजेंसी में क्या करना है. इमरजेंसी में इट सेज यू कैन गो अहेड विदाउट कंसेंट, बट डजंट से यू मस्ट गो अहेड विदाउट कंसेंट. तो डिफरेंस समझ के चलिए. और लॉ में बहुत सी चीज़ें होती हैं शुड एंड मस्ट. मेडिकल काउंसिल इंडिया में कुछ चीज़ें यू मस्ट डू, बट देयर शुड डू. शुड का मतलब नहीं कि आप मैंडेटरी है, पर एट योर विजडम इफ यू कैन डू दैट, दैट्स ओके.
In Delhi Medical Council, when I took over 8 years back, we are getting all 15 to 20 cases per month. पर 8 सालों में इतना चेंज आ गया. Now we are getting 30 to 40 cases per month. See the cases number of cases doubled. Number one. Number two, these days the complainant are much more educated, much more aware. आपको लॉ के बारे में नहीं पता, उनको लॉ के बारे में सब पता होता है. क्योंकि जब आप केस कर रहे होते हो सर्जरी, आपको वो लॉ नहीं पता होता, पर जब वो केस आप पे कर रहा होता है तो लॉ पढ़ के आता है. तो इसलिए आप लॉ पहले से पढ़ के रखिए, बहुत ज़रूरी है. एंड ऑप्स एंड गायनी में स्पेशली अब प्रॉब्लम है कि पेशेंट हैज़ सो मैनी एवेन्यूज टू लाइक टू ए डॉक्टर. जस्टिस मुक्ता से मैं मैडम बोलूँगा, बड़ी डिस्क्रिपेंसी है. एक सिंगल पेशेंट आपको 5 जगह सू कर सकता है और डॉक्टर को 5 जगह फाइट करना है. मेरे ख्याल से लॉयर के अगेंस्ट कर केस करते हैं, शायद ऐसा कुछ कंडीशन है कि आप 2 जगह नहीं कर सकते. तो ये लॉयर्स का भी चलो अच्छी बात है फिर तो. हमें लगा हम ही लोग डिसएडवांटेज में हर जगह. चलो उसमें तो आएंगे. नहीं मेरे को बहुत सी बातें करनी है. अच्छा मैडम सामने बैठी है, लॉ मेरी काफ़ी इश्यूज हैं. एंड दिल्ली मेडिकल में एक चीज़ बताना चाहूँ, दिल्ली मेडिकल काउंसिल में हाउ वी एड्रेस अ कंप्लेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ना डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू समझेंगे यहाँ पे. Now, Delhi Medical Council has 3-tier system to address a complaint. Now, whenever we get a complaint from a person, we take the written complaint along with the supporting document. Now, we send this complaint to the concerned doctor or hospital and get their written reply. Now, based on this documents only, our executive council sits along with the expert in that subject. Based on the document, we decide whether there is a prima facie or not. 80% of cases are decided right then and there. If we think there is no prima facie based on documentation, we dismiss the case right there. We don't call even doctor or the complainant. So there's a lot of harassment is avoided. But if we find something needs to be probed further, then we refer this case to our disciplinary committee where we call the doctor as well as complainant. So that is the importance of documentation. एंड ये स्लाइड्स बाकी मैं हर जगह दिखाता हूँ, पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है. हाँ, ऑप्शन का नहीं, एवरीवेयर द वर्ल्ड. और ये जो एमर्जिंग में जो आ रहा है ना सेकंड नंबर पे, इसको फर्स्ट पे कर लो आप. यहाँ पे IVF सरोगेसी रेयरिटी, ये भी टॉप पे आ रहा है, धीरे धीरे बड़ी स्पीड से आ रहा है. ठीक है. अच्छा, इसमें केसेस में 2 पर्सपेक्टिव कैन बी देयर. वन इज द जूरिस पर्सपेक्टिव एज वेल एज द doctor's perspective. Now, when we sit in Delhi Medical Council and educate a case as a judge, so what we see here, how we judge it. So that is important. If you understand our point of view, then will you understand how you have to behave. Now, there are 3 landmark cases which govern the litigations medical throughout the world. Historical cases है. Bolam test, practically आप सबको पता है. Bolam was a gentleman in 1953 somewhere. He was suffering of schizophrenia, and one of the mode of therapy of schizophrenia was electroconvulsive therapy. So that gentleman was given electroconvulsive therapy, and during that therapy he suffered a fracture. Now that gentleman sues the doctor saying, I should have been given muscle relaxant before the ECT, so the fracture could have been avoided. ये फर्स्ट केस किसी जज के सामने आया था, जहाँ पे थोड़ा सा मैडम अगर हम लोग फर्स्ट सेकंड में कम बात करेंगे तो मेरा डिस्ट्रैक्शन होता है. ठीक है. तो फर्स्ट केस किसी जज के सामने आया था जहाँ पे उनको डिसाइड करना, जज वाज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द वेगरीज ऑफ मेडिकल साइंस. व्हाट ही डिड, he forms a committee of few doctors and asks their opinion. At the end of the session, half the doctor said कि muscle relaxant देना चाहिए था, other half कहते नहीं देना चाहिए. तो there was split decision. उसके बाद जब ये डिस्कशन चला तो एक फाइनल वर्डिक्ट ये आया जिसका कि इन सिनारियो इफ यू हैव 2 ऑप्शंस, ऑप्शन A और B, and if you choose either A or B under circumstances which should be acceptable by a competent medical body, then you are not at fault, whatever the result may be. So that is the basis of all the tests कि आपको इस बोलम टेस्ट पे अप्लाई करते हैं. इसके बाद एक पैट्रिक बोलेथो केस आया which went further ahead of the बोलम test. Patrick Bolletho was a small child suffering from excessive croup and was admitted in hospital. During one of the episodes of croup, he develops the apnea. Nurse on call, nurse on duty calls the doctor, and doctor sitting in the OPD. There were 2 doctors sitting in the OPD. By the time those doctors reached the ICU where child was admitted, child recovered spontaneously. Recovery होती है, डॉक्टर्स वापस चले जाते हैं.
आधा घंटे बाद सेम चीज़ रिपीट होती है. नर्स अगेन कॉल्स द डॉक्टर. बाय द टाइम दे रीच अपस्टेयर्स, बेबी वाज ऑल राइट. दिस थिंग हैपेंस थर्ड टाइम ऑल्सो. थर्ड टाइम बेबी डाइज. इस पर बच्चा बचता नहीं है. अब उसके पेरेंट्स ने डॉक्टर्स पे केस कर दिया कि माइल्ड चाइल्ड शुड हैव बीन इंट्यूबेटेड ऑन द राइट फर्स्ट इंसिडेंस. अगर इंट्यूबेट कर ले तो बच्चा बच जाता. अब इस केस में अगेंस्ट जज को कैसे जजमेंट ले, तो उन्होंने फिर एक कमेटी बैठाई. हाफ डॉक्टर सेट की इंट्यूबेट करना चाहिए था, अदर हाफ ने कहा इंट्यूबेट नहीं करना चाहिए था. इस केस में अगर हम स्ट्रिक्टली बोलेम टेस्ट लगाएं तो नॉन गिल्टी होता है. पर जज एट हिज विजडम थॉट समथिंग एल्स. उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, कुछ ना कुछ गड़बड़ है. देन जज सेज कि व्हाट एवर, उसने कहा कि नहीं, आपने यू शुड हैव टेकन ए बेटर केयर ऑफ चाइल्ड. अगर फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम है तो ऐसा नहीं होता. तो इससे एक चीज आगे और ऐड हुई कि वट एवर डिसीजन यू टेक ए और बी शुड बी एबल टू लॉजिकली एक्सप्लेन इट कि वाई टुक डिसीजन ए और वाई टुक डिसीजन बी. तो फाइनली डॉक्टर वॉज हेल्ड गिल्टी इन दिस केस. तो आप कोई भी डिसीजन लेंगे वो आप कोर्ट और लॉ में एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको लॉजिकली कि आपने डिसीजन क्यों लिया है. नॉट मियरली कि दो डॉक्टर आपसे एग्री करते हैं ना बच जाएंगे. एंड फाइनली 2015 में मॉन्टेगेमरी वर्सेस लॉन्गशायर हेल्थ बोर्ड, ये अभी जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे डिस्कशन हो रहा था, कहीं ना कहीं इसका ये बेसिस था. ये मिस मॉन्टेगेमरी वाज ए शॉर्ट स्टेचर लेडी, फुल टर्म प्रेग्नेंट, एंड शी गोज टू ए ऑब्स्टेट्रिशियन फॉर डिलीवरी, एंड दैट डॉक्टर इन हर विजडम ऑफर्स हर ए नॉर्मल डिलीवरी. बट ड्यूरिंग डिलीवरी शोल्डर डिस्ट्रोशिया होता है और बेबी को एस्फिक्सिया हो जाता है. नाउ दिस लेडी sues the doctor and says कि I should have been offered a cesarean section. अब इस केस में वही डिलेमा आ गया जज के सामने. अगर आप इसको बोलेम टेस्ट लगाते तो आधे बोलेंगे करना है, आधे बोलेंगे नहीं करना है, तो नॉन गिल्टी है. पर यहाँ पे एक बेसिक शिफ्ट हुआ फंडामेंटल. किसके पहले माना जाता था कि डॉक्टर इज द बॉस. अ डॉक्टर नोज बेस्ट अबाउट हर पेशेंट एंड हर हिज पेशेंट, एंड डॉक्टर हैज फुल राइट टू डिसाइड व्हाट टू बी डन. यहाँ पे जज ने उल्टा कर दिया, नहीं, आपको अपने पेशेंट को सारी इंफॉर्मेशन देनी है एंड अवेलेबल चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट बतानी है. फाइनल डिसीजन लाइज ऑन द पेशेंट कि क्या करना है क्या नहीं करना. तो ये फंडामेंटल इन्फॉर्म्ड कंसेंट का फोन है कि आपको इन्फॉर्म करना है इसको. सारे ट्रीटमेंट जो पॉसिबल है उनके पॉसिबिलिटीज़ की प्लसेस क्या है माइनसेस क्या है, पर आई फाइनल डिसीजन हैज टू बी पेशेंट हरसेल्फ. तो इट इज़ द नाउ द पेशेंट इज बॉस, नो लॉन्गर द डॉक्टर. तो आपको अपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट में ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट जरूर लिखने होंगे. बिफोर गोइंग फर्दर हेड, आप मेडिकल नेग्लिजेंस है क्या, ये सवाल बार बार आता है. तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी. अगर आप इफ़ यू अंडरस्टैंड दीज 4 points, so maybe they are the best defense for you in case you are held up in liability. First, there has to be establishment of doctor-patient relationship. अगर आपका पेशेंट आपके केयर में नहीं है तो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती. एंड एज ए डॉक्टर यू हैव ए राइट टू रिफ्यूज द पेशेंट अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी. ये क्लियर है. सेकंड, देयर हैज टू बी ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी. अब ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या होती है? आइदर एक्ट ऑफ कमीशन और एक्ट ऑफ ओमिशन हम कहते हैं. और वो विल डिसाइड की एक्ट ऑफ ओमिशन कमीशन क्या था. तो बोलेम ने एक जजमेंट में लिखा था कि यू हैव टू पोस्टुलेट और इमेजिन ए रीजनेबली गुड डॉक्टर अंडर द सर्कमस्टेंसेस, नॉट अ वेरी हाईएस्ट स्टैंडर्ड और लोएस्ट स्टैंडर्ड, ए रीजनेबली डॉक्टर व्हाट शुड हैव बीन डन. अगर उसने वो किया है तो देयर इज अ रीजनेबल गुड केयर ऑफ ड्यूटी. एंड फाइनली देयर हैज टू बी डैमेज टू द पेशेंट बिकॉज ऑफ दैट ब्रीच ऑफ ड्यूटी. 3 फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट. अगर तीनों में से एक भी फैक्टर एब्सेंट है तो इट इज़ नॉट ए केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस. और ये कुछ जजमेंट हैं, सारे में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर आपको पता होना चाहिए सबको. आप गूगल कर लीजिए, बहुत टाइम लगता नहीं है पढ़ने में, 10 मिनट्स लगते हैं एक केस. आपको पता होना. एवरीबडी शुड नो दीज आर लैंडमार्क केसेस. ये हमारी मेडिकल साइंस को गवर्न करते हैं. अगर आपको फोटो लेनी तो फोटो ले लीजिए इनकी, सबको पढ़ लीजिए. मैं हर कॉन्फ्रेंस में जाकर कहता हूँ अगर इसमें हम बोलने लेंगे तो प्रॉब्लली एक में ही बहुत टाइम निकल जाएगा. आप ले लीजिए इनको. और इसके अलावा 3 जो ये केसेस आए थे रिसेंटली जिन्होंने हमारे मेडिकल साइंस की पूरी सोच को बदल दिया है. IMA वर्सेस वीपी शांता केस, जिसके बाद हम लोग कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आ गए. तो दैट वाज अ मेजर शिफ्ट इन रिलेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट. द अर्लियर इट वाज टू बी यूज्ड टू बी ए रिलेशन ऑफ ट्रस्ट, नाउ इट्स अ रिलेशन ऑफ कॉमर्स, गिव एंड टेक. CPA अमेंडमेंट, उसके बाद एक्ट आया अभी 2019 में, उसको अमेंडमेंट कर दिया गया है. एक बड़ा भारी कन्फ्यूजन था उन दोनों, व्हाट्सएप पे चलता था कि अब डॉक्टर CPA से बाहर आ गए, CPA से बाहर आ गए. कोई CPA से बाहर नहीं हुए. इनफैक्ट अब ये काफ़ी और ख़राब हो गया है, पहले से भी बहुत ख़राब हो गया. बताता हूँ क्यों. दिल्ली के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है
और पहले द अपर लिमिट ऑफ ए कॉम्पनसेशन आस्क्ड वाज 20 लाख इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नाउ इट हैज़ 1 करोड़। तो आपके किसी भी नेबरहुड कोर्ट में जाकर के कोई 1 करोड़ तक का कॉम्पनसेशन आपसे डिमांड कर सकता है। सेकेंडली, अगर आपका पेशेंट किसी और स्टेट से आता था, सपोज इट वाज फ्रॉम झारखंड और बिहार और मे बी कोलकाता, and he wants to sue you, so he has to sue in Delhi itself. The patient has to come Delhi and sue. Now they can sue in their own place and you have to go there and defend it. ये और इसमें खतरनाक चेंज आ गया है, तो ध्यान रखिएगा CPA से बाहर नहीं है हम लोग, सबके सब है। स्टीरॉयड केस का मेंशन मैं इसलिए करता हूँ, ये आपको बताऊँ AMRI हॉस्पिटल कोलकाता वाला केस था जहाँ पे 11.6 करोड़ का कॉम्पनसेशन वाज अवॉर्डेड अगेंस्ट डॉक्टर्स। तो जो इससे आप आइडिया लगा लीजिए कितना माइंड बॉगलिंग कॉम्पनसेशंस डॉक्टर्स के अगेंस्ट दिया जा रहा है। लास्ट 2 महीने में मैंने 4 जजमेंट पढ़े हैं, इसमें 3 में तो 1-1 करोड़ का अवार्ड था अगेंस्ट डॉक्टर, एक में 39 लाख का था। तो आपको पता होना चाहिए, इससे आपको अपना इंडेमिनिटी इंश्योरेंस को भी चेक करना। आई थिंक 2 करोड़ से कम कोई भी मत कराइए। और अनफॉर्चुनेटली मैम अभी भी इसमें ना ये MACT एक्ट लगाते हैं टू कैलकुलेट ए कॉम्पनसेशन, तो मैंने काफ़ी डिटेल में स्टडी की लिखा भी था। नाउ MACT एक्ट इज ए एक्ट विच इज अप्लाइड फॉर ए ड्राइवर, maybe drunken driver who kills a pedestrian. The same act is applied on doctors who is in well intent tackles a critical ill patient and patient dies. So that is something which has to be looked into by judiciary also. How can we equate these two people? And second, the problem is that the compensation you are asked to give is not dependent on your degree of your fault, rather than the financial capability of the victim. अगर सेम गलती में अगर गरीब आदमी है तो कॉम्पनसेशन कम है आपका, अगर वो पैसे वाला तो ज़्यादा है, तो इसमें ये भी थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं मेडिकल लॉ में इसको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ मोस्टली पेशेंट्स पे होता है, पर ऑल दोज एरियाज जहाँ पे पेशेंट का एक्सेस नहीं है, लाइक आपका लेबर रूम है, OT है, ICU है, तो बर्डन प्रूफ लाइज ऑन यू। सो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक रखने होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूनिट सिस्टम, ये बहुत इश्यूज हमारे सामने, इतने केसेस आते हैं आजकल खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। रात को ड्यूटी पे SR होता है, कंसल्टेंट कॉल पे होते ही नहीं, ना ही कभी आते, ना ही SR की हिम्मत है कॉल करने की। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में केसेस आ रहे हैं, वो कहते हैं जी हमें तो पता नहीं। पर अगर आपका यूनिट सिस्टम है इन एनी हॉस्पिटल, यूनिट हेड इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। यू कैन नॉट जस्ट सेंड की। अभी एक केस है रिसेंटली, भी आपको 4-5 जजमेंट आ जाएगा। दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक बच्चा आता है, उस बच्चे को कैजुअलिटी में मदर की लैब में है, उसको शायद कोई सीजर का इशू था, उसको इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन को लैब में ही बच्चे की डेथ हो जाती है, और 3 घंटे तक किसी ने देखा ही नहीं उसको। मदर थॉट की बेबी स्लीपिंग, और चाइल्ड वॉज नॉट इवन एडमिटेड देयर। इंटरनल इंक्वायरी होती है, इंटरनल इंक्वायरी में कहता है जी वो एरिया था ही नहीं इंजेक्शन देने का, फिर क्यों दिया गया? अब वो तो सीधा सीधा SR पर डाला, उसने इंजेक्शन दिया, पर दिस थिंग हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट। तो ये इसमें आप देख लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी। ये बड़ा सा जो ट्रेंड है खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कंसल्टेंट्स को बुलाते नहीं है, इन्फॉर्म नहीं करते, पर दिल्ली मेडिकल काउंसिल इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। आपकी जिम्मेवारी सबकी बनती है। क्रिमिनल लायबिलिटी का भी बीच में काफ़ी शोर मचा है कि जो अर्चना शर्मा वाला केस हुआ था राजस्थान में, और 2 केसेस नोएडा में ऑप्स वालों के अगेंस्ट, जहाँ पे 304A लगा दिया गया। ये भी बिल्कुल अनलॉफुल था हर जगह। तो आप समझ लीजिए क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी में फ़र्क क्या होता है। इन सिविल लायबिलिटीज ओनली मॉनिटरी कॉम्पनसेशन इज अवॉर्डेड, एंड क्रिमिनल लायबिलिटी में पनिशमेंट कैन बी अवॉर्डेड। 2 लैंडमार्क केस हैं, सुरेश गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT एंड जक्का मैथ्यूज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इन दोनों केसेस से काफ़ी कुछ 304 का जो कन्फ्यूजन क्लियर हुआ है। अब 304A क्या कहता है? इट सेज हूएवर causes death of any person by doing rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपका नेग्लिजेंट एक्ट है कहीं प्रूव होता है तो आपको जेल हो सकती है। इसका मतलब तो जितने भी नेग्लिजेंस केस है डॉक्टर के सारे जेल जाएंगे फिर तो। अगर आप 304 को एसएच लगा दो, इंटरपोलेट कर दो, तो हर केस में आपको जेल जाना पड़ेगा। तो एवरी केस इज क्रिमिनल केस। इस पर बड़ी बहस हुई थी। 30 सबसे पहले सुरेश गुप्ता वाला केस था, उसमें कोई प्लास्टिक सर्जन था, वॉज ऑपरेटिंग फॉर ए नेजल डिफॉर्मिटी एंड ड्यूरिंग सर्जरी चाइल्ड एक्सपीरियंस एंड डाइज। तो उसमें केस हुआ था बाद में, फिर वो मालूम पड़ा कि कफ एंडोटेकल ट्यूब नहीं थी, उसका साइज छोटा था, ये था वो था। तो उसमें 304A लगा के डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके अगेंस्ट ये केस चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये पहली बार कहा था उस समय कि 304A एज सच अप्लाई नहीं कर सकते डॉक्टर्स के ऊपर, तो क्रिमिनल लायबिलिटी उस केस में से हटा दी गई थी।
इसके तुरंत 1 साल बाद ही दूसरा जैकब मैथ्यूज वाला केस आया, ये लुधियाना का केस था। केस बड़ा लंबा है, पर क्रक्स ऑफ द मैटर ये कि ये केस भी सुप्रीम कोर्ट तक गया अगेन कि 304A लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। अब जो लॉयर वाला पॉइंट था, उन्होंने कहा कि जब व्हेन यू हैव ए लॉ रिटन क्लियरली यू कैन नॉट हैव टू सबसेट ऑफ पॉपुलेशन कि आधों पे एप्लीकेबल होगा आधों पे एप्लीकेबल नहीं होगा, यू कैन नॉट डायल्यूट इट। पर ऑन द अदर ऑन देयर विजडम जजेस थॉट कि कैसे लगाएं, तो उन्होंने एक बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी थी, आफ्टर डेलिब्रेशन दे कम विद दिस जजमेंट ऑफ जैकब मैथ्यूज केस। उन्होंने एक बात उसमें ऐड करी, हालांकि 304A आज भी वैसा ही है, पर फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस दैट एक्ट हैज़ टू बी रेकलेस होना चाहिए, बहुत ऐसा सिंपल नहीं होना चाहिए, अनलेस इट इज़ अ वेरी रेकलेस, आप उसमें 304A नहीं लगा सकते। और सेकंड जो उन्होंने इसमें पॉइंट ऐड किया था कि फॉर बुक एनी डॉक्टर इन ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस, first it case has to be reported to a competent body of doctors. Unless that body of doctors says it's a negligence, you cannot book a case. तो 2 जजमेंट बहुत अच्छे जैकब मैथ्यूज में आए थे। उसके बाद अब पहले कोई भी आके किसी को अरेस्ट करके ले जाता था, अब वो पॉसिबल नहीं है। खासकर दिल्ली में तो हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कई स्टेट्स में अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, यूपी में और राजस्थान में देखा है मैंने। पर दिल्ली मेडिकल काउंसिल में ए पुलिस वाला कैन नॉट टच ए डॉक्टर अनलेस इट इज़ prima facie said by Delhi Medical Council or any other competent body. डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव में छोड़ देता हूँ, आप लोग डिस्कस कर ही रहे हो सारा। बस कुछ बातें एनएमसी जो कोड ऑफ एथिक्स में है, रजिस्ट्रेशन आपका सबका चेक कर लीजिए, दिल्ली मेडिकल काउंसिल में होना चाहिए। कई बार रिन्यू कराना आप लोग भूल जाते हो, और जो आप पे केस करेगा सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन चेक करता है कि नहीं। इट्स लाइक ड्राइविंग ए कार विदाउट अ लाइसेंस। सफिक्स जो लगाते हैं डिग्री के आगे बहुत केयरफुली लगाइए। इतने केसेस हो रहे हैं कोर्ट में, कहते हैं जी मेरे को मिस रिप्रेजेंटेशन था, मेडिसिन में बहुत होता है जी, कार्डियोलॉजिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। जब कोर्ट में जाते हैं तो जज कहता है जी आपने इसको बेवकूफ़ बनाया। कई केसेस हमारे सामने चल रहे हैं। अनलेस द डिग्री इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, प्लीज डू नॉट राइट इट। अगर आपका कुछ स्पेशल डिप्लोमा यहाँ तक का जो रिकॉग्नाइज नहीं, आप लिख दीजिए स्पेशल इंटरेस्ट, बट डू नॉट फ्लॉन्ट इट। डिग्री डिस्प्ले करनी है, चार्जेस। एडवर्टाइजमेंट का बड़ा आजकल चल रहा है, इंस्टाग्राम पे आप लोगों के बड़े रील्स आते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के, बहुत आ रहे हैं, और मैंने कईयों को बताया अभी इसमें कई इश्यूज फंसने वाले हैं। इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज भी है, कितना भी लिख लीजिए फंसने का डर होता है उसका है। अब करा इसमें सर इतना इशू आ रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी में, आप कुछ भी लिखवा लो, कुछ भी कह देगा बाद में। और सेकेंडली इसमें देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन व्हाट इज सोलिसिटिंग ए पेशेंट एंड एजुकेटिंग ए पेशेंट। सोलिसिटेशन इज नॉट अलाउड एज पर एमसीए कोड ऑफ एथिक्स, पर एजुकेशन इज अलाउड, पर लाइन वो बहुत ही ब्लर्ड सी है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत लोग आ रहे हैं, मैं कईयों को अपने क्लिक्स को कहता भी थोड़ा ध्यान रखो। बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है उसमें, पेशेंट की शक्ल आ रही है, बेबी की शक्ल आ रही है, उसकी मदर कह रही है देखो डॉक्टर कितनी अच्छी है, मेरे को बच्चा दे दिया। ये सब क्या हो रहा है? जिस दिन फंसेंगे बुरी तरह से फंसेंगे, वही बच्चा किस करेगा 20 साल बाद जाके आपके ऊपर। मैं देख रहा हूँ लेबर रूम में लेटी है बेचारी, उसका पसीने आ रहे हैं, बाल, उसमें कैमरा टक टक टका के, मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल बचाइए, कम से कम फेस तो बिल्कुल फेस भी रिवील कर देते हैं बोलने के बावजूद भी। ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सॉलिसिट, देखो एमसीए कोड ऑफ एथिक्स कहता है आप पेशेंट सॉलिसिट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है गलत है, पर ये लॉ है, और ये पनिशेबल लॉ है एज पर एमसीए, ठीक है। पर एजुकेशन अलाउड है। अब एजुकेशन में आपने कोई चीज़ बोली, आप बोल दो कि भाई मैंने, आप ये चीज़ है भाई, सपोज पीसीओडी के बारे में बता रहे हैं, पीसीओडी भी होता है, पर आप इसमें ऐड कर दो कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैंने इतने केस ठीक कर दिए, ये मेरा टेलीफोन नंबर है, इसके लिए अपॉइंटमेंट, ये सॉलिसिटिंग में आ जाएगा। ये देख रहे नीचे आप देखो तो पूरा लिखा होता है। अब सॉलिसिटिंग में और दोनों में फ़र्क है, ठीक है। और कॉन्फिडेंशियलिटी का बात, सर्टिफिकेट की मेरे ख्याल से बात हो चुकी है आप लोग। नहीं, वेबसाइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सॉलिसिट नहीं करना चाहिए। देखो दूसरी बात के थिन लाइन के अलावा इमर्जिंग चीज़ है, ये रोज नई नई चीज़ आती है, हमें भी नहीं पता, लॉ में कहीं लिखा भी नहीं है, पर अल्टीमेटली अगेन कम्स बैक टू द कॉमन सेंस। अब रोज नई नई चीज़ें आ रही हैं। ये तो जब लॉ एमसीए कोड ऑफ एथिक्स कितना पुराना था, तभी थी नहीं। अब एनएमसी रिवाइज कर रही है, इस पर बात करेंगे। इस पर हमने उनको अपनी रिकमेंडेशन लिखी है एनएमसी को कि आप डालिए इसके अंदर, क्योंकि जहाँ ग्रे एरियाज आते हैं वहाँ पे जजेस के विम्स एंड फैंसीज बहुत मैटर कर जाते हैं ना, सब्जेक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होनी, सब्जेक्टिविटी कम होनी चाहिए। जज का क्या मूड है, कैसे ले ले उस दिन नहीं मैं होता है नहीं, हम लोग भी जज ही एक तरह के, हमारा भी मूड होता है, क्या गुस्सा आई है तो आ जाती है अच्छा, इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। सारे एमसीए कोड ऑफ एथिक्स पढ़ लीजिए। मुझे लगता है, अच्छा आप में से कितने एमसीए कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा है? ऑनेस्टली बताना हाथ खड़ा करके।
देखो बताओ, अब आपको कितने मुश्किल से 10 मिनट भी लगते हैं पढ़ने में, और वो एमसीए कोड एथिक्स आपकी मेडिकल साइंस को गवर्न करता है कि बोर्ड कितना बड़ा है, पैड में क्या लिखना है, डीएमसी नंबर क्या लिखना है, और आपका जो केस करेगा वो पढ़ के आएगा पहले। वो नहीं देखेगा आपने डोपामिन दिया नहीं दिया, डोपामिन डोज को पता आपको पता है सही दी होगी, अब वो देखेगा आपने डिस्प्ले की कि नहीं करी, आपने डीएमसी नंबर लिखा नहीं लिखा है, आपने डिग्री लिखी वो है कि नहीं, रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। अभी इतने केसेस हमारे पास में आ रहे हैं, सब यही से होते हो। कोई मेडिकल साइंस में होता ही क्या, कौन सी गलती करने वाला, आप रोज ही काम करते हो, गलती यहाँ करते हो क्योंकि आपने किसी ने नहीं पढ़ा। वो एनएमसी कोड ऑफ एथिक्स आने वाला है, और अगली बार रजिस्ट्रेशन से पहले हम आपसे क्वेश्चन आंसर कंपलसरी करवा देता हूँ मैं। रिन्यू से पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा, जो पास हो किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा। अब अपने आप नहीं पढ़ते तो क्या करें। अच्छा रेलेवेंस, लॉ, एक्ट्स, जजमेंट जितने आप बात किए बढ़िया करिए प्लीज। वही तो कह रहा हूँ सर, जो फंस जाता है ना सर वो सब कुछ कर लेता है, दिक्कत है, उसके पड़ोसी भी कर लेते हैं, पर जिसको नहीं फंसता कहते क्या हो। हम लोग, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी, हम सारे ही ऐसे हैं सर। इंडेमनिटी इंश्योरेंस का मैंने बोल दिया, जो अगर आप लोग हायर सेक्टर में काम करते हैं, कोई साउथ दिल्ली वाले हैं 5 करोड़ का करा ले, हम मेरे जैसे रोहिणी वाले 2 करोड़ का करा ले, कोई दिक्कत नहीं। पर जो हाई एंड क्लाइंट्स को देख रहा है बिल्कुल अच्छा से करा करके। और अगर आप में से कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहा हो ना तो उसका तो भगवान ही मालिक है। इतने केसेस हो रहे हैं क्योंकि उसमें हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, बिगड़ैल टाइप के, जरा सी नाक ऐसे करानी वो केस झगड़ा कर देता है, उसमें बहुत खूब केसेस हो रहे हैं उसमें कॉस्मेटिक के। अच्छा कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन सब हो चुका, आपको मैं सब छोड़ देता हूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में लेके बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि रिएक्शन हो गया जी कौन जिम्मेवार है, आप तो लिख के चले गए। थोड़ा सा फास्ट कर लेता भाई, अगर आपकी जिम्मेवारी एज ए डॉक्टर है कि ब्लड उसको चेक करें, उसमें नंबर क्या है, क्रॉस में सब कुछ है कि, उसके बाद आप, अगर आपका स्टाफ क्वालिफाइड है और आपके नोट्स प्रॉपर हैं तो समथिंग गोज अलोंग, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। बट आपका स्टाफ क्वालिफाइड नहीं है, अंडर क्वालिफाइड है, और आपने प्रॉपर नोट्स नहीं डाले तो आप उसके लिए जिम्मेवार है। ये भी काफ़ी केसेस आते हैं, मैं सब छोड़ देता हूँ, अब सीधे गए नहीं पा जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक है स्टडी यूएस की, हमारे देश में तो जल्दी से होती नहीं है। अब देखो ये फर्स्ट स्लाइड सिनेरियो बताती है ऑप्शन गैनी का क्या हाल है वहाँ पे। ना वन ऑप्शन गैनी कैन एक्सपेक्ट 2.5 लायबिलिटी क्लेम्स ओवर हिज हर और कैरियर। मतलब एक भी केस कैन रूइन आवर कैरियर, पर 2.5 एक्सपेक्टेड होता है, और ये इंडिया इज फास्टली कैचिंग अप दिस थिंग। पहले तो बहुत पीछे आगे हो रहे हैं। अराउंड 80% के एंटिसिपेट बीइंग सूड इन देयर कैरियर, ऑप्शन गैनी की बात कर रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 25.6 ऑप्स डिक्रीज देयर हाई रिस्क बैक टू। अब मुझे लगता है बहुतों को, मैं भी जानता हूँ, सब ने कम कर दिया ऑप्स का, धीरे धीरे इनफर्टिलिटी सब IVF करने लगे, कोशिश करें, सेफ जोन है, ठीक है। और 7.2 मतलब 10 में से एक प्रैक्टिकली दे क्विट देयर प्रैक्टिस एंटायरली बिकॉज ऑफ दिस लिटिगेशंस। तो सच ए ब्लीक सिनेरियो इंडिया में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पर कुछ बातें जो हमें भी समझ में आ रही हैं, ज़्यादा देखो, दिल्ली मेडिकल काउंसिल में वी नेवर गिव फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन, वी ओनली अवार्ड अ पनिशमेंट टू डॉक्टर बाय री रजिस्टरिंग द डॉक्टर। अगर हमारे यहाँ कोई केस करने आता है मतलब रियली एग्रीव्ड होगा कि उसको कुछ नहीं मिल रहा, 10 चक्कर भी लगाएगा, पैसे भी खराब करेगा, वी जस्ट वांट टू पनिश यू। और पनिशमेंट इज मोस्टली जस्ट बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, नॉट बिकॉज ऑफ योर कॉम्पिटेंसी। वो कहीं ढंग से बात ही नहीं करते थे, अपने आप को क्या समझते थे, ये था वो था, गुस्से में रहते थे, ये उनकी हमेशा कंप्लेंट होती है। अगर हमने से कामली बात करी तो मैं आई एम श्योर 80% केस लोग नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो केस आते हैं सारे एग्रीव्ड होते हैं। सेकंड लाइन क्या लिखी, 85% केसेस आर फाइल्ड अगेंस्ट 3 to 6% सेम डॉक्टर्स। ये देख के चलो, हमारे पास भी है रिपीटेड केस है उसी डॉक्टर्स के, हम कह रहे हैं फिर आ गया इसका केस, लास्ट ईयर तो आया था, इसका फिर आ गया इसका केस। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन जो बिहेवियर में चेंज करने, इट्स नॉट अबाउट टेक्निकल इशू, ये अपना अपना इशूज भी है। इट्स मोर लाइकली टू दोज हु आर हरीड, अनइंटरेस्टेड एंड अनविलिंग टू लिसन एंड आंसर। ये बहुत ज़रूरी है, आप समझ लीजिए, अगर अपनी प्रैक्टिस में इसको अडॉप्ट करेंगे आप मेंटली पीस में भी रहेंगे और केसेस की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी। एंड लेस लाइकली अगेंस्ट दोज परसीव्ड एज कंसर्न्ड, एक्सेसिबल एंड विलिंग टू कम्युनिकेट। 85% केसेस रिपीटेडली उन्हीं डॉक्टर्स के अगेंस्ट हो रहे हैं जिनका बिहेवियर में इशू है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा वाई यू आर द मोस्ट वल्नरेबल ब्रांच, बिकॉज यू आर डीलिंग टू लाइफ्स एट ए टाइम, बेबी एंड ए मदर। प्रॉब्लम इज कि मदर को यू कैन सी एंड फिजिकल एग्जामिन, बट फॉर बेबी यू हैव टू डिपेंड ऑन सो मेनी गैजेट्स, यू कैन नॉट एक्चुअली सी दैट बेबी। फॉलो अप आपका 46 वीक्स होता है, 40 वीक्स प्लस 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी।
एंड यू आर डीलिंग विद ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, योर पेशेंट आर मोस्टली नॉट सिक, सो उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है कुछ हो जाए तो, कि हम तो ठीक ठाक लाए थे जी, एंड मोस्टली पेशेंट्स आर यंग एंड हेल्दी, तो फैमिली पर बर्डन बहुत बड़ा पड़ता है. दीज आर 4 रीजंस वाई ऑब्स्टेट्रिक आर सुइंग मोर देन एनी एल्स. ये जो केसेस, जो मैक्सिमम केसेस हमारे पास देखने में आते हैं, ये जो वर्ल्ड वाइड डेटा है उसके हिसाब से एंटीनेटल केयर ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, एरर और ओमिशन एंटीनेटल क्लिनिकल डायग्नोसिस, एरर और ओमिशन यूएसजी स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, पेरीनेटल डेथ्स, बर्थ एस्फिक्सिया, पीपीएच, रिटेन्ड स्वाब. ये इंटरनेशनल डेटा सब जगह सेम है. गायनी में स्टरलाइजेशन और कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर, इनकम्प्लीट एमटीपी, परफोरेशन ड्यूरिंग एमटीपी, अनडायग्नोज्ड एक्स्ट्रा यूटेराइन हिस्टेक्टोमी प्रेगनेंसी, improper indication of hysterectomy, retained foreign body or swab during surgery, and delayed and wrong diagnosis of malignancy. ये इंटरनेशनली जो मेजर कॉजेज ऑफ केसेस हैं, वो जो हमारा एक्सपीरियंस है दिल्ली मेडिकल काउंसिल में, सबसे ज़्यादा हम देखते हैं केस पीपीएच के. सबसे ज़्यादा यहाँ पीपीएच के आते हैं. मोस्टली अनडिटेक्टेड है, पेशेंट लेटा है, आपने शाम को देखा तब तो ब्लीड कर चुकी है. उसमें आपको शॉक को अर्ली रिकॉग्नाइज करना है, ब्लड की अवेलेबिलिटी एज पर लॉ इंश्योर करनी है. अगर आपके पास आईसीयू फैसिलिटी नहीं है, स्मॉल सेटअप में है, तो आपका एक टाइप होना चाहिए किसी आईसीयू सेटअप से, और आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए. अगर 2 चीज़ें आप प्रूव कर सकते हैं तो आप शायद बच जाएंगे. बॉस्ट ऑफ एमटीपी केसेस बहुत आ रहे हैं. एमटीपी के जो लॉज हैं उसको प्लीज़ 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 अच्छे से फॉलो करिए. बड़े डॉक्टर्स फंस गए हैं इसके अंदर. एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड, ये बड़ा चक्कर पड़ रहा है आजकल. आप लोग स्क्रीनिंग खुद करते हैं, साल में 2-3 केस हमारे पास हमेशा आते हैं कि आपने एंटीनेटल स्क्रीनिंग में चीज़ मिस कर दी और बेबी डायग्नोज जब पैदा होता है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का ये नहीं, किसी का वो नहीं. इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट एग्रीव्ड होते हैं, कहते हैं ये क्या हुआ. तो अगर कभी भी डाउट हो तो प्लीज़ रेफर टू ए एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट. आप स्क्रीनिंग से आगे मत जाइए, क्योंकि इनके भी अपने शॉर्ट कमिंग्स होते हैं. स्टिल बर्थ एंड बर्थ एस्फिक्सिया केसेस बहुत आते हैं. रिटेन्ड स्वाब भी हैं, 2-3 गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी केस है, आपने डाल दिया और निकालना भूल गए, फिर वो 2-3 महीने तक लेके घूमते रहे, पस बन गए, बन गया, कई केसेस आते रहते हैं. अब एआरटी में जितने भी सरोगेसी है, एआरटी है, एक्ट को पढ़ लो अच्छे से, दिमाग में बैठा लीजिए. आप उससे एग्री करो डिसएग्री करो अलग पॉइंट है, पर आपको फॉलो करना पड़ेगा. अब लोग कहते हैं ये ऐसा कर दिया, अब तो हम कैसे करेंगे. जैसे भी करेंगे, अगर लॉ है तो लॉ है टू बी फॉलोड, वेदर यू एग्री और डिसएग्री. अगर आप 2-3 केसेस ले लेते हैं, एग्जाम बस हो जाएगा, 5 मिनट और हैं, ठीक है. अब ये एक ये बड़ा कॉमन सिनेरियो है. एंटीनेटल पेशेंट कॉल्स ए डॉक्टर टेलीफोनिकली, कंप्लेंट्स ऑफ हेडेक. डॉक्टर उसको कहती कोई एनाल्जेसिक ले लो जी, क्रोसिन ले लो, पैरासीटामोल ले लो. वो रिलीव नहीं होता, एंड शी थ्रोज ए कन्वल्सन एंड शी गोज टू सम हॉस्पिटल इन एक्लेम्सी एंड डिलीवर्स ए स्टिल बर्थ बेबी. ना वो डॉक्टर को सू कर देती है कि फेलियर ऑफ डायग्नोसिस एंड प्रॉपर केयर. इस केस में डॉक्टर लूजेज द केस. कोर्ट ने कहता है इम्प्रॉपर केयर था. इसका मैसेज ये मिलता है कि टेलीफोनिकली आप कभी भी अगर एडवाइस करते हैं तो इसे विद अ वर्ड ऑफ कॉशन, पहला आप उसको एडवाइस हमें ये करिए कि आप हॉस्पिटल पहुंच जाइए. मेन टाइम ये कभी भी टेलीफोनिकल दिन भर आते रहेंगे. अगर आपको मतलब मैंने तो अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड में नंबर लिखा ही नहीं है मैंने. मेरा ये सोचना है कि 10% पेशेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% हेडेक. आप देख लो, अगर आप ओपीडी में 20 पेशेंट देखते हो, 20 में 2-3 मिलेंगे जो खपती पागल टाइप के होते हैं. उनको जाने दो, लेट दम गो, कुछ नहीं फर्क पड़ता. जो एनर्जी बचाओगे ना मेंटल, उससे 4 पेशेंट और एक्स्ट्रा देख लोगे. तो कभी भी उसको ना पेशेंट को ब्रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए. बी प्रोफेशनल, बी क्लियर. टेलीफोनिकली एडवाइस नहीं देनी तो नहीं देनी. जाते हैं कहीं जाए, आप बोले हॉस्पिटल जाओ, वहीं जाके देखोगे. एक सिंपल सा हेडेक था, पर हो गया, डॉक्टर फंस गया, कुछ भी हो सकता है. अब ये एंटीनेटली वो पेशेंट कॉल्स डॉक्टर एट मिडल ऑफ द नाइट, रात को 2 बजे फ़ोन किया. उसने कहा जी फ़ोन नहीं उठाया, कुछ प्रॉब्लम होती है, शी गोज टू नर्सिंग होम, सब कुछ, डॉक्टर को सू कर देती है. अब बताइए डॉक्टर गिल्टी है कि नहीं यहाँ पे. इस केस में डॉक्टर ने केस लूज किया है. सुनो बुरी बात, ये आप ड्यूटी टू केयर है ना. अब इसमें आपकी ड्यूटी टू केयर है. अब वो पेशेंट, मैं तो डॉक्टर साहब के केयर में थी, अब मेरे को हो गया तो मैं क्या करूं. इसका सोल्यूशन ये है कि आपके पेशेंट को पता होना चाहिए कि इन केस इमरजेंसी कहाँ जाना है, क्या करना है. आपकी राइटिंग पैड पे या आपके जो बुकिंग कार्ड पे साफ साफ लिख दीजिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज रीच दिस हॉस्पिटल. बस नंबर नहीं होना चाहिए, नंबर तो कोई उठा नहीं सकता कभी भी. हर प्रिस्क्रिप्शन पैड पे अगर उसमें लिखा होता तो भैया आपको ने बता रखा है उसको, उसने कहा मेरे तो कुछ लिखा ही नहीं, मैं रात को 2 बजे कहाँ जाऊँ.
तो ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे सब्जेक्ट लिखवा लीजिए, बड़ा कॉन्स्पिक्यूसली बड़ा बड़ा नंबर मत देना, नंबर तो कभी काम करता है कभी नहीं करता। अच्छा, इस केस में एक प्राइमी को यूएसजी डॉपलर एडवाइस किया गया था फॉर फ्री फ्लोटिंग हेड। पेशेंट डिड नॉट गेट इन्वेस्टिगेशन डन एंड शी गोज इन स्पॉन्टेनियस लेबर। सेकेंड स्टेज वॉज स्टक बिकॉज हेड वॉज नॉट डिसेंडिंग। Vacuum assisted delivery was done after informed and documented consent. 2 loops of cord around the neck were found and baby developed the birth asphyxia. डॉक्टर को केस कर दिया गया। आप बताइए गिल्टी है कि नहीं है? कोई कह रहा है नहीं नहीं, इसमें नॉन गिल्टी है। देखो ध्यान से पढ़ो आपने, पहले तो आपने इन्वेस्टिगेशन एडवाइस का उसने नहीं किया, आप डॉक्यूमेंट कर दीजिए। सेकेंडली आपने जहाँ केस आपने देखा इन्फॉर्म्ड एंड डॉक्यूमेंटेड कंसेंट। अगर आप जो भी चीज़ करते हैं, अगर कोई चीज़ निगेटिव कंसेंट को भी डॉक्यूमेंट करिए अगर वो मना करता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट ठीक से कर दिया तो आप सेफ हो। अगर 90% केसेस आर लॉस्ट और विन बिकॉज ऑफ ए डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड एज वेल द वर्स्ट एनिमी अगर आप ठीक से नहीं करते तो। हाँ, ये एंटीनेटल स्कैनिंग करिए, 6 month एमिनोरिया विद ए पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। शी डज यूएसजी हरसेल्फ विद नो इंट्रा-यूटेराइन प्रेगनेंसी वाज विजुअलाइज्ड। डीएनई करते हैं बट प्रेगनेंसी कंटिन्यूज रहती है। आफ्टर 1.5 months शी प्रेजेंट्स विद रप्चर्ड कम्युनिकेटिंग रुडिमेंट्री हॉर्न। देयर वाज केस ऑफ बाइकॉर्नर यूट्रस। वो डॉक्टर पे केस कर देते हैं। अब बताइए गिल्टी है कि नॉन गिल्टी है? यस, अगर आप स्क्रीनिंग करते हैं तो आपको कहीं इसमें देखो, आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के बाद भी यू कैन नॉट विजुअलाइज, तो आपको एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए, वो देखेगा। तो प्लीज़ अपने एक्सपर्टाइज फील्ड को ट्रांसग्रेस मत करिए, इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइए। अल्ट्रासाउंड, एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड के इतने केसेस आ रहे हैं, बहुत केसेस आ रहे हैं। आप ध्यान रखिए, अपने एक्सपर्टाइज से बियॉन्ड बिल्कुल मत जाइए। वेन एवर ए डाउट प्लीज़ हैव ए कंसल्टेशन विद ए क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट। भाई डिस्चार्ज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। डिस्चार्ज क्योंकि वो पेशेंट घर चला गया ना, उसमें क्या लेना है, कब लेना, और खासकर इमरजेंसी में कहाँ पहुँचना है पता होना चाहिए। ये ओवेरियन सिस्ट डायग्नोस्ड अल्ट्रासाउंड एंड hysterectomy was performed. Later it's found that there is no pathology with the uterus. Now court asked for justification for removing uterus. ठीक है, ये ऑलमोस्ट सबीरा कोहली वाला केस ही हो गया कि जहाँ पे हिस्टेरेक्टोमी का अपने लेकर के फोरेक्टोमी कर दिया था। तो आप देख लीजिए, जो मतलब कहने का मतलब यू शुड नॉट गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कंसेंट अनलेस लाइफ सेविंग। ये सर्वाइकल बायोप्सी रिपोर्ट्स स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। हिस्टेरेक्टोमी वाज परफॉर्म्ड विद नो पोस्ट ऑप रेडियोथेरेपी और कोमोथेरेपी वाज एडवाइज्ड। नाउ पेशेंट डेवलप्स स्टेज 4 कार्सिनोमा विद इन 6 months। नाउ पेशेंट सू करता है डॉक्टर को। इसमें क्या देखो, पॉइंट ये कि अगर आपने जो भी थेरेपी की उसके बाद फॉलोअप क्या करना है, उसको कब रिपोर्ट करना और क्या क्या चीज़ देखनी है। अगर ये चीज़ें डिस्चार्ज में लिखी हुई हैं आपने तो आप सेफ हो, पर आपके डिस्चार्ज अगर क्लियर नहीं है कि पेशेंट को क्या क्या चीज़ वॉच करनी है, क्या करनी है, तो फंस गए। इसमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मिसिंग हुई है, पर आपको अगर फॉलोअप में ठीक से लिखो, उसको बुलाओ कि ये चीज़ वॉच करनी है और आपको आना है, तो आप बच गए। अदरवाइज इसमें भी पेशेंट डॉक्टर लॉस द केस। इसमें अनबुक्ड फुल टर्म विद हाई पीएच रीचेज ए नर्सिंग होम। अब नर्सिंग होम रिफ्यूजेज एडमिशन फॉर द लैक ऑफ फैसिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लिकेशंस, पर पेशेंट इंसिस्ट कि मुझे यही कराना है जी। डॉक्टर एडमिट्स आफ्टर एक्सप्लेनिंग एंड रिटर्न कंसेंट, बट द कॉम्प्लिकेशन होता है डॉक्टर पे, पेशेंट केस कर देता है। गिल्टी नॉन गिल्टी? नॉन गिल्टी, वेरी गुड। आप लोगों ने यहाँ पे कंसेंट ले रखा है, गुड। कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, छोटे नर्सिंग होम में डेली आता हूँ, जाने को तैयार नहीं होता, नहीं पैसे नहीं है, नहीं होनी, तो आप लिख लीजिए। बस फाइनली ये कि आप कुछ चीज़ें बस ध्यान में रखिए, अपडेटेड रहिए। लॉ दिल्ली मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट है, वहाँ पे आर्टिकल्स डाले हुए हम लोगों ने लिटिगेशंस को अवॉइड। आपके ऑप्शन गायनी के भी काफ़ी आर्टिकल्स हैं, प्लीज़ उनको पढ़िए। जितने भी केसेस हमारे पास आते हैं हम सबको साइट पर डालते हैं, सबको इन डिटेल। आप जाके, हाँ बिल्कुल सारे केसेस हैं, पूरे आज तक 8 साल के पूरे केस मिल जाएंगे आपको, एक एक डलवाते हैं हम लोग। आप उनको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा किस तरह का जजमेंट आता है, क्या कंप्लेंट्स होती हैं। प्रैक्टिस कंटेम्प्रेरी एविडेंस मेडिसिन होनी चाहिए, फेथ बेस्ड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट शो कंपैशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपके 90% केसेस बच जाएंगे। एंड बी प्रिपेयर्ड, इफ यू आर इन ट्रबल, बी प्रिपेयर्ड विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू।